इफेक्ट इंड्यूस्ड, इंड्यूस का मीनिंग क्या था? बिकॉज ऑफ एनी अदर ग्रुप और एलिमेंट. What is the charge induced? What is the charge produced? Because of group attached to the carbon chain. है ना? I told you earlier, suppose any group is present on the carbon chain, then this bonded electron may shift towards the group or away from the group. If this group is shifting towards group, delta negative इधर आएगा, delta positive इधर आएगा. If bonded electron is shifting away from the group, then delta negative इधर आएगा and delta positive इधर आएगा. Now, because of this group, either delta positive or delta negative charge is producing on the carbon chain. That's why it is called as induced. That is the inductive effect. Induced effect ना बोल करके now they are saying inductive effect. Okay. तो हम लोगों ने देखा था in brief, I'm revising the things. Inductive effect are of two types. One was positive inductive effect. Second one was negative inductive effect, जिसको मैंने plus I effect and minus I effect बोला था. मैंने ये भी बोला था all functional groups are belonging to, for example मैंने क्या लिया था, NH3 plus NO2 है ना, SO3H या simply COOH. All are belonging to, all functional groups are belonging to minus I effect. Plus I में मैंने लिखा करके दिया था R is any alkyl group, or suppose you are having CH3, this is CH3, ऐसा, not carbocation, this is the tertiary attached with the carbon chain, then secondary, then primary, ऐसा हमने करके दिया था for the plus I effect. Now the most important part, रिवाइज इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे पता है लास्ट वीक में हमने पढ़ा था, plus I effect will produce delta negative charge on carbon chain, देखो, and minus delta positive charge on carbon chain. It is producing delta positive charge, that is by plus charge. Delta positive by means of minus I, and delta positive charge by minus I, and delta negative charge by plus I. इसीलिए मैंने इसका नाम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बोला था कि ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता था, इसलिए डेल्टा पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन चेन. व्हाट अबाउट दिस वन, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप बोला था. सो दिस इज द ब्रीफ और यू कैन से समरी ऑफ द लास्ट लेक्चर. इसको मैंने और भी छोटा करके यूज किया तो some other points which I have discussed in the last one, that is plus I effect will increase basic character, minus I will increase or directly proportional to acidic character. Okay, so this one was the summary of the chapter. So let us start with, that is given in textbook. I'm not going beyond the textbook. This is given in textbook, and believe me, problem came in IIT as well as NEET. So let us move towards the problem. Okay, let us move towards the problem. देखो, please write down problem. अच्छा, यूज भी हम लोगों ने देख लिया था,
कार्बोनियम वाला, ओके अगर यूज देख लिया था तो मैं इसको फिर से रिवाइज कर देता हूं, नो प्रॉब्लम। आई एम रिवाइजिंग द थिंग्स ताकि कोई प्रॉब्लम नहीं आने पाए। So this positive charge is present on carbon, that's why it is called as carbocation. This is called as carbocation, or same word is used as carbonium. So if you are having one hydrogen, ये क्या था मैं लिख नहीं रहा हूं लेकिन ये है क्या, इसका मतलब ये नहीं कि सर भूल गए कुछ। दिस इज मिथाइल, दिस इज 3 degree. Why 3 degree? The positive charge present on the carbon, but that carbon is attached with 3 carbon. Red से लिख दिया। Now carbon which is bearing red positive charge is attached with 3 left, upward and downward carbon. That's why this is tertiary carbon. Now this is attached with 3 की जगह पर 2. That's why this is secondary 2 degree carbocation or carbonium. Both are same. तो अब मैं फिर से ब्रीफ रिवीजन। अभी देखो यहां पर पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट इज प्रोड्यूसिंग डेल्टा नेगेटिव चार्ज, दैट्स व्हाई देयर आर 3 प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट, यहां पर प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट will produce 3 डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा नेगेटिव। बिलीव मी, लोगों को नहीं पता होता है, दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर आईआईटी उनके यहाँ तो होता है, बाकी जगह पे तो क्या हो रहा है कोर्स खत्म करने के चक्कर में बस भाग के कंप्लीट करा दिया। इसीलिए पॉजिटिव चार्ज मैग्नीट्यूड इज प्रेजेंट, तुम लिखो ऐसा लिखना चाहो तो पॉजिटिव चार्ज magnitude is higher in किसमें, this is primary, magnitude is highest, but stability order क्या होता था इसका उल्टा। बोला था in this whole universe not a single element, molecule or cation anion will try to be in positive or negative charge. They will always try to be in the neutral form. That's why यहाँ पे 3 डेल्टा नेगेटिव मिल करके एक पॉजिटिव चार्ज को खत्म कर रहे हैं। तो मैग्नीट्यूड चार्ज इज लिस्ट इन टर्सरी, दैट्स व्हाई दिस इज मोस्ट स्टेबल वन। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर वाज दिस वन। यहां तक हुआ था भाई, प्लीज। नाउ आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। पूरा चैप्टर जो भी पूरा लास्ट लेक्चर मैंने ब्रीफली समराइज कर दिया। मैंने बोला समराइज भी कर दिया, ब्रीफली भी बोल दिया। नाउ शैल आई मूव टू नेक्स्ट वन? पुढे जाऊं का? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यस। नाउ द सेकंड यूज ही है, बट इसका यूज हम लोग देख रहे थे। फर्स्ट वाज स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, ठीक। तो यूज में सेकंड लिखो, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनायन। Same way, carbanion. What is the meaning of anion? Negative charge. And what is using carbanion? Carbanion का मतलब है कि negative charge present on carbon. Okay?
Now CH3 is belonging to which group? Plus I or minus I? I use the word all functional groups are belonging to minus I. Only alkyl groups are belonging to plus I. So there are 3 plus I groups again, CH3, CH3 and CH3. देखो प्लस आई विल प्रोड्यूस रेड में मैं सर्कल करता हूं प्लस आई विल प्रोड्यूस यहां पे देखो डेल्टा नेगेटिव चार्ज सो हियर आल्सो दे विल प्रोड्यूस 3 delta negative and delta negative charge by 3 methyl groups. So there are 3 alkyl groups on tertiary carbocation. So now this is carbanion, sorry. Now this carbon is attached with 2, that's why this is secondary carbanion. Now this is primary carbanion. This is also 1 degree carbanion, सबसे smallest carbanion. Now they are producing 2 delta negative. This is producing 1 delta negative. यहाँ पे तो कोई चार्ज ही नहीं है. चार्ज तो है, I mean, if you expand the structure of this one, ऐश्वर्या फर्स्ट लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, हो सकता है समझ में नहीं आए, बट डोंट वरी, क्योंकि ये लोग आज मुझे 6 महीने से झेल रहे हैं, है ना, इसलिए दे कैन अंडरस्टैंड. अभी धीरे 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 करके आई विल सेंड यू द लिंक्स, उस लिंक्स को देखो एंड वीडियोस देख देख करके सारे चैप्टर्स सारे टॉपिक्स के मैंने वीडियो अपलोड किए हैं, उनको देख देख करके प्लीज लर्न. ऐसा करके अब तुम लोग बोलो सबसे ज्यादा चार्ज कहां पे है? सपोज दिस इज A, B, C, D. This problem was in 2016 JEE मेंस. अब बोलो कितने सिंपल सिंपल प्रॉब्लम आ रहे हैं. नीट में भी आया. प्राइमरी वाला पे कार्बन नहीं रहेगा नेगेटिव चार्ज सबसे ज्यादा कहां पे है? टर्सरी पे, फिर सेकेंडरी पे, फिर प्राइमरी पे, है ना. इसलिए स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या हो जाएगा? वेयर चार्ज इज लिस्ट. मैं वाटर को ले लूं अनचार्ज, H2SO4 को ले लूं अनचार्ज, CO2 अनचार्ज. तो मोस्ट ऑफ द स्पीसीज in this universe will try to be in uncharged particle, uncharged form. Here magnitude of charge is highest in primary, sorry, tertiary, then secondary, then primary. So what will be the stability order? D, C, B, A. Now you want statement of this one, please? Do you want to write the statement? Yes, sir. Yes, sir. Sir. Yes, sir. So please write down the statement. हम लोग घर में बाद में पढ़ेंगे तो समझ में आएगा. लिखो लिखो in tertiary carbanion, in tertiary carbanion, in tertiary carbanion there are 3 alkyl groups.
there are three groups attached to the there are three alkyl groups attached to the tertiary carbon ion. या मैं लिख सकता था कि in tertiary carbon ion there are three alkyl groups attached. Whatever is the statement, I don't know. जिसको जो भी लिखना हो लिखो. सर आप स्टेटमेंट फिर से बताओगे क्या? अबिदा तेरा हमेशा उल्टा मतलब कि चलता है. ये बता, तेरे पास 10 रुपए है, 3 लोग और ला करके 10-10 रुपए दे देते, तेरे पास ज्यादा नहीं होगा. टर्सरी में ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज एंड 3 डेल्टा नेगेटिव चार्ज आर कमिंग, तो ऑब्वियसली डेल्टा नेगेटिव चार्ज विल प्रेजेंट ऑन टर्सरी मोर. कहां से देख रही है? सर मैं वो दो प्राइमरी का पूछ रही हूँ, उन दो प्राइमरी के बीच में सी वाले का ज्यादा रहेगा ना? हाँ, सी वाले का ज्यादा रहेगा क्योंकि वो डेल्टा नेगेटिव. डी वाले में तो डेल्टा नेगेटिव आ ही नहीं रहा है. दैट इज विथ रेस्पेक्ट टू हाइड्रोजन. यस सर. हाँ, चलो आ जाओ, लिखो. हाँ, there are three alkyl groups attached to the tertiary carbon ion which will disperse delta negative charge, which will disperse delta negative charge tertiary carbon ion is having three alkyl groups which will disperse delta negative charge which will disperse delta negative charge So magnitude of negative charge which is having high magnitude of charge, due to which it will be तुम लोग बार बार बोलते हो, पता नहीं क्या क्या रहता है उसमें. मैंने लिखा there are three delta negative charge, there are three alkyl groups which will produce delta negative charge, so magnitudes of charge will be high and tertiary carbon ion will be least stable. Due to which tertiary carbon ion is least stable. ठीक. So stability order will be tertiary, secondary and primary. हो गया? यस सर. चलो भाई आ जाओ, नेक्स्ट लिखो. Next one please. Next use, that is third one.
Next one, acidic character. Just a minute, please. Next one is acidic character. ये भी प्रॉब्लम हम लोग के पास ऐसा सिमिलर प्रॉब्लम इज गिवन इन टेक्स्ट बुक एंड बिलीव मी किसी किसी के बोर्ड एग्जाम 11th क्लास में भी आया हुआ है स्कूल्स वगैरह में। तो एसिडिक कैरेक्टर कैसे मैं निकाल सकता था, चलो आओ। सपोज यू आर हैविंग CH3 CH2 COOH, then you are having ऐसा, ठीक। सपोज you are having CH2 Cl CH2 and COOH. This is first, this is second, this is third. How these problems are done, nobody will write now. इधर देखो, what is the common everyone? What is the common everyone? कॉमन क्या है? 3 कार्बन एंड COH। एक्स्ट्रा देखो क्या आ गया, Cl यहाँ पे, Cl यहाँ पे, बाकी तो सब कुछ सेम है ना, जस्ट लाइक द फर्स्ट वन। इट इज जस्ट लाइक फर्स्ट वन। 2 कार्बन COH, 2 कार्बन COH, 2 कार्बन COH, एक्स्ट्रा is Cl Cl Cl. Now this Cl is belonging to minus I effect. This Cl is belonging to minus I effect. अभी देखो क्या लिखवाया था, क्या लिखवाया था मैंने, ये देखो minus I effect is directly proportional to acidic character. तो अब प्रॉब्लम ये है कि सेकेंड एंड थर्ड बोथ आर हैविंग माइनस आई इफेक्ट, ठीक, बोथ आर हैविंग माइनस आई इफेक्ट, so they will increase the acidic character. Problem is that which will increase more. Now statement number second और third मैंने लिखवाया था कि inductive effect is distance dependent. As distance increases, inductive effect increases, है ना यार, जो इफेक्ट, सॉरी मैं बोल रहा हूं, as distance increases inductive effect decreases. That was the statement, है ना, याद आया क्या? Yes, decreases. अगर डिक्रीज करेगा तो इस Cl का इफेक्ट COOH के ऊपर, जो यहां पर लास्ट वन, लास्ट Cl, एंड सेकंड में सेकंड लास्ट कार्बन पे Cl, both will have minus I effect, but minus I effect of second carbon chlorine is greater than third carbon chlorine of third carbon of third molecule. That's why minus I effect will be observed more on second one as compared to third one. So minus I is directly proportional to acidic character. कल देखा था, और हमने ये भी देखा था माइनस I और प्लस I is distance dependent. हमने लिखा था कि as distance increases, कोई भी इफेक्ट हो, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो,
आई इफेक्ट क्या हो जाता था, डिक्रीज हो जाता था। दैट्स वाई माइनस आई इफेक्ट इज हाईएस्ट इज इन सेकंड, देन थर्ड, फर्स्ट में तो है ही, सेकंड में है बट वो कॉमन में हमने ले लिया था। सपोज मेरे पास भी 2 रुपया है, अविदा के पास भी 3 रुपया है एंड ईशान के पास 4 रुपया है, तो मेरे रेस्पेक्ट में देखा जाएगा, मेरे रेस्पेक्ट में, है ना। वाई मेरे रेस्पेक्ट में, मेरे पास 2 रुपया है, कितना अविदा के पास ज्यादा है, 1 रुपया मुझसे, ईशान के पास मेरे से कितना ज्यादा है, 2 रुपया ज्यादा, क्योंकि उसके पास 4 रुपया, लाइक दिस वन। तो इसके रेस्पेक्ट में मैंने देख लिया, बिकॉज दिस इज द कॉमन वन। अब सीएल, अगर मुझे ऐसा नहीं समझ में आ रहा है, ये समझ ले कि जो माइनस आई इफेक्ट या प्लस आई इफेक्ट है, माइनस आई इफेक्ट या प्लस आई इफेक्ट है, ये समझ ले तुझे गन से शूट कर रहे हैं। अगर ये गन से शूट कर रहे हैं, जितना पास में रहेंगे उतना ज्यादा, ये समझ ले कि हेड पे लगा के मार दिया सेकंड वाला, थर्ड वाले में क्या हो रहा है, वो मुझसे दूर से मार रहा है। अगर जिसने बेटा तेरे सर पे सटा करके मार दिया गोली, ठीक है ना, गन से, इमीडिएटली शॉट डेड, थर्ड वाले में बचने के चांस बन जाएंगे, ऐसा टाइप का। दर्शन अभी रुक तो जा, पहले भी तो स्टार्ट हुआ है। तो एसिडिक ऑर्डर विल बी सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। चलो लिखो। ये तुमको एक्सप्लेन करने को आएगा तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में। हो गया? अपने अपने लैंग्वेज में लिखते जाओ, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, मराठी, वट एवर इट इज, आना चाहिए बस। डन सर। डन, वेरी गुड। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट प्रॉब्लम एज अ प्रॉब्लम लिखो, अरेंज द फॉलोइंग इन, arrange the following in decreasing order of, arrange the following in decreasing order of, arrange the following in decreasing order of acidic character. This is first one. अब ऐसे प्रॉब्लम्स जो फर्स्ट सेकेंड थर्ड वाला था, इसके ऊपर वाला सिमिलर प्रॉब्लम केम इन आईआईटी नीट। सोचो, ऐसा
तो अब देखो COOH के बाद नंतर COOH, this is hydrogen. In third one CH3, नंतर COOH भुजवी साइड नहीं दाहवी साइड C2H5, this is 3 कार्बन। इंडक्टिव इफेक्ट में क्या था, जाओ, व्हाट वाज इन इंडक्टिव इफेक्ट, मैंने बोला था एज नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीजेस प्लस आई इफेक्ट इंक्रीजेस, तो दे आर बिलोंगिंग टू, हाइड्रोजन के तो रेस्पेक्ट में होता था, नो प्रॉब्लम। इसमें जाओ, दिस इज प्लस आई, दिस इज प्लस आई, दिस इज प्लस आई। तो मैंने लिखा था एज नंबर ऑफ कार्बन increases plus I effect increases, ओके। और ये भी पढ़ा था तुमने, प्लस आई इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेसिक कैरेक्टर। ये 12th क्लास में मैं फिर से कराऊंगा, दो दिस इज द पार्ट ऑफ 11th क्लास, बट 12th क्लास में मैं फिर से कराऊंगा, ओके। तो क्या हो जाएगा, यानी प्लस आई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक कैरेक्टर। तो प्लस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा कहां पे है बेटा, अभिदा ये तूने क्या लिखा है 4321, बोलो सब लोग जल्दी जल्दी। So acidic character will be highest for, तो प्लस आई का ऑर्डर क्या था, 1 2 3 4, इसलिए एसिडिक कैरेक्टर का ऑर्डर विल बी 4 3 2 1। यस बिल्कुल सही लिखा है, साक्षी, स्नेहल, अभिदा, प्रणव, सब लोगों ने सही लिखा है, बिल्कुल सही है। आकांक्षा बिल्कुल सही है, इट्स टोटली करेक्ट। ओके, वेरी गुड। 3 4 3 2 1। सौरभ का ही प्रॉब्लम आए, हर्षित, ऐश्वर्या, ऐश्वर्या स्क्वायर, थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा बट स्लोली इट विल बी सॉर्ट आउट। और 12th क्लास में मैं डेफिनेटली फिर से कराऊंगा पूरा। अभी बहुत सारी चीजें ऐसा लगेगा कि एक एक चीज क्या क्या डंप होता जा रहा है ना, एक एक के ऊपर एक एक के ऊपर एक एक। फर्स्ट टाइम वी आर डीलिंग, नो प्रॉब्लम, मैं 12th क्लास में और ज्यादा कराऊंगा। फंडामेंटल विल रिमेन सेम, टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम आई विल चेंज। यस डेफिनेटली प्रैक्टिस होगा। डोंट वरी, इसको तो मैं एटलीस्ट 11th 12th होते होते एटलीस्ट 1000 टाइम्स मैं बोल दूंगा, तो तुमको क्या होगा, वो माइंड में फील हो जाएगा। अभी फर्स्ट, डोंट वरी। नाउ द नेक्स्ट वन इज,
रेजोनेंस इफेक्ट। नेक्स्ट हेडिंग रेजोनेंस इफेक्ट, टोटली न्यू वन, तो ये सबको समझ में आना चाहिए। रेजोनेंस इफेक्ट, एंड दिस इज द पिलर ऑफ द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इंडक्टिव इफेक्ट एंड रेजोनेंस इफेक्ट। नहीं, दिस इज नॉट द नेक्स्ट यूज। फर्स्ट इफेक्ट वाज इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट देख लिया हमने। नाउ सेकंड वन रेजोनेंस इफेक्ट। नाउ सेकंड वन रेजोनेंस इफेक्ट। फर्स्ट इंडक्टिव इफेक्ट, सेकंड रेजोनेंस इफेक्ट, थर्ड देखेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन, इसको फिनिश करने के बाद। रेजोनेंस इफेक्ट, इसीलिए नॉर्मली लोग नहीं कराते हैं, जल्दी स्टूडेंट्स को समझ नहीं आता, पाइल अप होता जाता है, तो वो बस डेफिनेशन लिखवाया, निकाल करके निकल गए। बिलीव मी, डेफिनेशन लिखवा करके निकल जाते हैं। और अभी मेरे पास आते हैं ना सब, मैंने बताया ना क्रैश कोर्स में, ऐसे ब्लैंक रहते हैं इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट की पूछो मत। जबकि तुमको मैं बोलूंगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री याद नहीं करना है, बट उसके लिए मुझे इंडक्टिव इफेक्ट एंड रेजोनेंस इफेक्ट आना चाहिए, ऐसा। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इंडक्टिव एंड रेजोनेंस। आ जाओ भाई। रेजोनेंस इफेक्ट अगर तुमको याद हो, केमिकल बॉन्डिंग में मैंने कराया था, केमिकल बॉन्डिंग में रेजोनेंस इफेक्ट था, और मैंने बोला था मैं और भी अच्छे से करूंगा जब ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आएगा। ओके, आ जाओ बेटा। अब कोई कुछ नोट नहीं करेगा, नोबडी विल राइट एनीथिंग नाउ। रेजोनेंस बोला उन्होंने, तो तुमने पढ़ा था कि व्हेनेवर एनी कंपाउंड, कोई भी कंपाउंड is existing in more than one structure, बेंजीन में नंबरिंग कर दो। अगर तुमने यही पाई बॉन्ड उठाया और ऐसा रख दिया, नंबरिंग तुमने उठाया और ऐसा रख दिया, बट नंबरिंग रिमेन सेम, इसका मतलब हो गया कि एटम का पोजीशन चेंज नहीं होता है, पाई बॉन्ड का पोजीशन चेंज होता है, एंड बोथ आर लुकिंग सिमिलर। नंबरिंग नहीं करता, तुमको लगता है बिल्कुल सेम है। तो अब मैंने पहले भी समझाया था, अभी भी बोल रहा हूं, तुमको बुक्स वगैरह में ऐसा सर्कुलर दिखाते हैं ना, ये कुछ ऐसा है, मैंने पहले भी बोला था, सेम एग्जांपल एज प्रीवियस वन इन केमिकल बॉन्डिंग। सपोज तुम्हारे पास फैन है, ऊपर देखो, सभी लोग के घर में है, मुझे पता है। अगर फैन है तो उसमें देखा सबके घर में 3 ब्लेड लगा है। कोई ऐसा है जिसके घर में एंटीक पीस पड़ा है और उसमें 4 ब्लेड लगे हैं? कोई है क्या बाबा स्पेशल? नहीं ना? चलो भाई आ जाओ। लेकिन 4 ब्लेड वाला अगर तुमको देखना है तो आज से 40 साल 45 साल पहले आनंद भवन, और भी पहले मान ले, कम से कम वो 60s वगैरह में बना था, वहां पे जाएगा तुमको 4 ब्लेड वाले दिखाई देंगे, और उनके जो ब्लेड होते हैं ये ऐसा स्ट्रेट नहीं रहते थे, वो थोड़े से ट्विस्टेड रहते थे, ऐसा स्ट्रेट नहीं, वो ऐसा टाइप के, मतलब कि ऐसा ट्विस्टेड टाइप के, है ना? तो ट्विस्ट करने से क्या होता था, वो जो एयर है उसको ज्यादा कवर करेगा, और ज्यादा तेज चलने वाली बात अलग है, बट हवा ज्यादा देगा। लेकिन मोटर के ऊपर उसमें ज्यादा पावर जनरेट करना पड़ेगा मोटर को, क्योंकि ट्विस्टेड रहेगा, तो डेट विल कवर मोर एरिया कवर करेगा,
तो मुझे पावर ज्यादा लगाना पड़ेगा, है ना? दैट इज अ डिफरेंट इशू। चलो, जब फैन में 3 ब्लेड थे और इस टाइम पर किसी के भी गियर में नहीं चल रहा है क्योंकि बिकॉज ऑफ कोल्ड सीजन, तो यू कैन सी 3 ब्लेड्स बाय नेकेड आई। लेकिन उसको थोड़ी देर के लिए अगर चला करके देखो और विद इन 1 मिनट तुम देखोगे कि योर नेकेड आई कैन नॉट डिस्टिंग्विश कि उसमें ब्लेड्स है ना? ये कुछ वैसा ही है। यहाँ पे जो पाई बॉन्ड है वो अपना पोजीशन कंटिन्यूअसली चेंज कर रहे हैं। अगर वो कंटिन्यूअसली अपना पोजीशन चेंज करेंगे तो व्हाट इज गोइंग ऑन एक्चुअली, कंटिन्यूअस पोजीशन चेंज करेंगे तो अब मैंने पहले भी बोला था, फिर से एग्जांपल, सपोज तेरा पुणे में एक घर है, ईशान के एक घर है और दर्शन के पता चला कि 50 घर हैं पुणे में। कोई किडनैप करने को आया तो ईशान को घर में आया, एक ही घर में आया, मिल गए, लेकर के गया। लेकिन दर्शन को अगर कोई किडनैप करना चाहे, भाई ऐसा कुछ करना नहीं है, मैं कुछ वैसे ही बोल रहा हूँ इन फनी वे, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि ईशान दर्शन 1 से लेकर के 50th रूम में, पता नहीं कहाँ पे है ये कोथरूड में है, पिंपरी चिंचवड़ में है या कहाँ है पता नहीं, इनके जो स्टेबिलिटी है इनकी इंक्रीज हो गई। तुम्हारा एक ही पोजीशन है, तुम्हारे बचने के चांस कम है। सेम थिंग इज इन रेजोनेंस। When this compound is existing in more than one structures, during this process energy is released. और मैंने बोला था कि इस यूनिवर्स में जितना कम एनर्जी रहेगा सिस्टम का उतना स्टेबल रहता था। केमिकल बॉन्डिंग अगर याद हो, मैंने बोला था कि पेन को अपने पाम पे रखो, पेन गिर जाएगा। गिरने के बाद ये ऐसा रहा, क्यों? गिरने के बाद इट इज स्टेबल वन बिकॉज इट इज लूजिंग इट्स एनर्जी। जो एनर्जी कितना था, mgh mgl, तो एनर्जी रिलीज करके कोई भी कंपाउंड मॉलिक्यूल सिस्टम वो स्टेबल होता है। सेम थिंग इज हियर, जितना ज्यादा स्ट्रक्चर रहेंगे उतना ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा, जितना ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा एनर्जी सिस्टम का कम होगा, एंड लेसर इज द एनर्जी ऑफ द सिस्टम, stable will be the system. Minimum energy state is the stable state of the system. Minimum energy state is the stable state of the system. तो जितना ज्यादा स्ट्रक्चर उतना ज्यादा रेजोनेंस। अब रेजोनेंस किसकी वजह से होता है? What is the reason? This is delocalization of pi bond. लोकलाइज का मतलब फिक्स, डी का मतलब फिक्स नहीं है। जब पाई बॉन्ड का पोजीशन फिक्स नहीं होगा तो इट विल चेंज इट्स पोजीशन, ड्यू टू व्हिच more number of structures will be formed and it will continuously release energy, due to which it becomes stable, and this process is called as nothing but resonance effect. पहले ये बोलो, जो मैंने स्टेटमेंट बोला वो समझ में आया क्या? Already I have Yes, sir. dictated one, huh? I have already Yes, sir. dictated one. Yes, sir. सर Seriously? हाँ, yes. वो डिलोकलाइज होने का कुछ स्पेसिफिक रीजन होता है क्या, मतलब एक्सटर्नल कंडीशन वगैरह? कोई एक्सटर्नल कंडीशन नहीं, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए हो रहा है। ओके सर। चलो लिखो, डेफिनेशन लिखो फिर से, which we have already written in chemical bonding. ठीक है, लिखो when any compound is existing in when any compound is existing in
when any compound is existing in more than one structures, in more than one structures, more than one structures, due to delocalization of pi electrons या pi bonds, due to delocalization of, due to delocalization of pi bonds or pi electrons, then it is called as resonance. Then it is called as resonance. ठीक है ना? उसके बाद लिखो नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 1, लिखो different structures obtained during resonance, different structures obtained during the resonance, different structures obtained during resonance, different structures obtained during resonance are called as canonical structures, are called as canonical structures. Are called as canonical structures. उसके बाद next one. Now the next one. लिखो any canonical structure cannot describe, 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 any canonical structure cannot describe full properties of या all properties of structure, all properties of a structure, all properties of structure, so it is represented by, resonance hybrid structure. It is represented by resonance hybrid structure.
Okay. अब लिखो now the next point. Point number 3rd. लिखो higher is the resonatic structure. 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 Greater will be. Higher is the resonatic structure. Greater will be. Greater will be stability of the. Greater will be stability of the. Greater will be the stability of. Yeah, greater will be stability of the structure. Greater will be stability of the structure. Next point लिखो. Next one. लिखो when one structure is when one structure is converted into another structure. When one structure is converted into another structure during resonance, one structure is converted into another structure. Then energy is released during resonance. When one structure is converted into another structure during resonance, energy is released. Energy is released. Energy is released. That energy is called as resonance energy. That energy is called as resonance energy. Next point. Higher is the resonance energy, greater will be stability. Higher is the resonance energy, greater will be stability. Okay.
Higher is the resonance energy, greater will be the stability. ऐसा कुछ नहीं कि मैं बहुत ज्यादा करा रहा हूँ, या मैं बस टेक्स्ट बुक को बहुत अच्छे से पढ़ा रहा हूँ। मैंने तुमको पहले ही बोला है कि मैं बहुत अच्छे से टेक्स्ट बुक कर लूं तब पर ही मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकता है नीट IIT के लिए। सोचो, all these things are given in the textbook. Believe me, all these things are given in the textbook. Now the next heading लिखो, conditions of resonance. कभी अगर मेरे पास आता है रेजोनेंस को लिखने के लिए राउट एंड शॉर्ट नोट्स, इतना मैं लिख दूंगा तो बहुत 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 हो जाएगा। चलो नाउ लिखो, conditions of resonance. Conditions of resonance. Conditions of resonance. Conditions of resonance में जाओ। कंडीशन नंबर 1 लिखो, पाई बॉन्ड अल्टरनेट ऑफ पाई बॉन्ड। ये तो बुक्स वगैरह में नहीं है, ठीक है ना, ये बुक्स में नहीं है, इसलिए मैं बता रहा हूं क्योंकि इसके प्रिंसिपल पे देखो तुमको समझ में आएगा। देखो रेजोनेंस में है ना, पाई बॉन्ड अल्टरनेट मतलब एक छोड़ करके, पाई बॉन्ड एक बॉन्ड छोड़ करके पाई बॉन्ड, एक बॉन्ड छोड़ करके पाई बॉन्ड, देन इट इज इन रेजोनेंस। कुछ याद आ रहा है? दिस इज CH2, देन CH2 इधर बीच में CH एंड CH। देखो फिर से पाई बॉन्ड अल्टरनेट, एक बॉन्ड छोड़ करके पाई बॉन्ड, याद आ रहा है? 1 2 3 4, 1,3 ब्यूटा डाइईन। यस, सब लोगों को याद आ रहा है, वेरी गुड। IUPAC नेमिंग वगैरह भी मैंने करवाया था बड़े अच्छे से। नाउ सेकंड वन, पाई बॉन्ड अल्टरनेट ऑफ पॉजिटिव चार्ज। ये देखो, पाई बॉन्ड एक बॉन्ड को छोड़ करके पॉजिटिव चार्ज अगर होगा तो विल बी इन रेजोनेंस। एक बॉन्ड छोड़ करके पॉजिटिव चार्ज, ऑल आर इन रेजोनेंस। अब देखो ये ज्यादा स्टेबल होते जाएंगे इवन टर्सरी से भी कार्बोकेटायन, क्योंकि रेजोनेंस में है। अभी देखते हैं बाद में। ओके, इज देयर एनी प्रॉब्लम? Is there any problem, please, till now? No, sir. No, sir. Next one लिखो, pi bond alternate of pi bond alternate मतलब एक बॉन्ड छोड़ करके, pi bond alternate of नेगेटिव चार्ज। तुम्हारे बुक में डायरेक्टली लिखेगा कि दिस इज इन रेजोनेंस, अब क्यों है ये नहीं बोलता है।
all these things condition को it will say it is in resonance, but why it is resonance it is not saying. ये सब conditions हैं. Same. Next लिखा pi bond alternate of lone pair of electron. Pi bond alternate of lone pair of electrons. For example, is this one. बेंजीन के ऊपर अगर मैं यहां अगर याद हो फिनॉल लिखता था मैं, ये देखो all are in resonance. आज लगता है बहुत हैवी डोज मिल गया, क्यों? But that will make simple for organic chemistry. Pi bond alternate of free radicals. Pi bond एक छोड़ करके pi bond. फ्री रेडिकल ये देखो बेंजीन रिंग को सर्कुलर बना देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, सॉलिड से बना करके, मीनिंग इज सेम. यस नाइट्रोबेंजीन भी होगा, सब होंगे. अभी तो मैं छोटा सा एक एक दो एग्जांपल दे रहा हूं ना, इसलिए कि कहीं ऐसा ना हो कि बाउंस करने लग जाए. इसलिए आज के वीडियो को तो बार बार देखो, आज के वीडियो को बार बार देखो, जितनी बार भी देखोगे उतनी बार कम है. टुडे इज वीडियो मैं पोस्ट कर दूंगा, अभी आज ही पोस्ट कर दूंगा, और देखो उसको, है ना. चलो ठीक है, मैं आज हैवी डोज मिलने की वजह से आज